Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam from Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, today onwards we are going to start our second unit, which is based on the optical losses. So let's start with our departmental vision, mission, and program educational objective. Here, this slide shows the vision of our Electronics and Telecommunications Department. This vision is set for achieve the goal of our department. The vision statement is to nurture proficient diploma engineer to meet the need of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. So this is our vision. For fulfilling our this vision, we are set some mission statement. The mission statement is here. This slide shows the mission of our department for to achieving the vision of department. The mission statement 1 is imparting quality education for to meet society and industry needs. Provide ethical and outcome-based education for the development. Inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Enhance the leadership skills and employability or higher education. And last one is seeking continuous improvement of knowledge and skills. So these are five mission statements for to achieving the vision statement. So this two slide shows the whatever vision we set, and for that vision statement we achieve, for the achieving the vision statement we are writing here the mission of department. Next slide shows the program educational objective of our department. So here here this slide shows the program educational objective. Means after completing your diploma, when you will working in the industry, so this program educational objective is achieved. The program educational objective means PEOs in short. The very first one is provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problem, adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technology to work in multidisciplinary work environment. And third one is solve broad based problem individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. यानी ये जो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर डिप्लोमा, जब आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में कंप्लीट होगा, उसके बाद जहाँ पे आप वर्क करोगे या फिर आप कहीं हायर स्टडीज में जाओगे, तो तब ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे. ओके, so this is all about the program educational objective. Here, this slide shows the course outcome of our second unit and its program outcome mapping. The course outcome for this unit is measure the optical fiber cable parameter. Means after completion of this unit, we are able to achieve this outcome. Means we can measure the different parameters
of optical fiber cable, and its PO mapping is, here I mention total 7 POs, right from PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 to PO7. I map this course outcome to these 7 number of program outcomes. See, PO1 is mapped with at a level 3. This PO1 is referred as a discipline knowledge. Likewise, up to PO7, I mapped here at a level 1, 3, 2 and 1. So this is related to the course outcome and program outcome mapping. Now, here onwards, we are going to start our second unit, that is based on the optical losses. And from that unit, we are going to start our first topic, that is topic number 2.1, which is based on the definition of different parameters of optical fiber cable. मीन्स ये पर्टिकुलर सेकेंड यूनिट जो भी लॉसेस आते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन, मीन्स ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने के लिए जो हमने फाइबर ऑप्टिकल केबल का सिलेक्शन किया है, मीन्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल हम अपने जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर रहे हैं. तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो भी लॉसेस आते हैं वो लॉसेस कौन से प्रकार के होते हैं और कौन से लॉसेस से ज़्यादा हमें लॉस होता है, किसी को हमें पहले ही प्रिकॉशन लेना है, ये सभी लॉसेस के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, यानी जो भी पैरामीटर हम मेज़र करने वाले हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, वो पैरामीटर की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं. So let's start with some learning outcome of our today's session. Here it shows the learning outcome of our today's session. Means after completing our today's session, the learners will be able to define the term related the optical fiber. Means optical fiber के related जो भी पैरामीटर की डेफिनेशन हो या फिर टर्म हो वो आप डिफाइन कर सकते हो. एक्सप्लेन द गिवन टर्म्स रिलेटेड टू द फाइबर, वही पैरामीटर रिलेटेड टर्म्स ऑप्टिकल फाइबर के वो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड कैलकुलेट द पैरामीटर बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी जो भी पैरामीटर हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पैरामीटर हमें कैलकुलेट भी करना है. यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बेस्ड ऑन द पैरामीटर, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन हमें कुछ न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है. नाउ हियर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिवाइज वंस अगेन आवर बेसिक टर्मिनोलॉजी related to the light. The basic terminology you already studied in your school days, that is called as a reflection. So I prepare one diagram and paste over here. So carefully look into that. This is our light ray, this is incident light ray, and this is a particular conducting surface onto which I incident a particular light ray. Then after striking to the conducting surface, the incident light ray again reflected into the same medium. See, this is all a particular same medium which having a particular refractive index. Then if the angle which makes with the normal, the angle by the incident ray which makes with the normal is called as angle of incident, and the angle by the reflected ray which makes with the normal is called angle of reflection. तो इस प्रिंसिपल को अपन बोलेंगे रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है तो उसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन. सो आई रिप्रेजेंट अ डेफिनेशन हियर. रिफ्लेक्शन is a phenomenon when light ray is incident
on a particular conducting surface, then it reflects within the same medium by making an angle with the normal. यानी वो सेम मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उस प्रिंसिपल को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे. ये हमने ऑलरेडी स्कूल डेज में पढ़े हैं. ओके, जैसे रिफ्लेक्शन होता है उसी तरह का रिफ्रैक्शन होता है. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है यह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. See, now here the phenomenon related to the refraction. In refraction, we are considering a two medium here. See, this medium considered as a air and this medium is considered as a water. Air having different refractive index like n0 and water having different refractive index n1. When I incident a particular ray, suppose this is the incident light ray onto the particular medium like water, then the light ray doesn't refracted into the its same medium. मतलब यहाँ पे सेम मीडियम में लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली जा रहा है वाटर मीडियम में. तो इस प्रकार के प्रिंसिपल को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल. जो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे ये है नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट रे एंगल बनाता है तो उसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे अगर एंगल बनाता है तो उसको बोलेंगे अपन रिफ्रैक्शन एंगल. दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ऐसी आपको नोट करना ज़रूरी है कि अगर लाइट की स्पीड, सपोज ये इंसिडेंट रे है विच हैविंग अ पर्टिकुलर स्पीड, वो आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो वो अगर कम होती है आफ्टर टचिंग टू इट्स सेकंड मीडियम, देन वी कैन से दैट दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन. सो आई रिप्रेजेंट हियर when speed of light change or it pass through a different medium like air, glass, water, etc., then refraction is occurred. लाइट की स्पीड अगर चेंज होती है आफ्टर टचिंग टू इट्स डिफरेंट मीडियम लाइक एयर, ग्लास, वाटर फ्रॉम द अनदर मीडियम, देन रिफ्रैक्शन ऑकर, तब रिफ्रैक्शन आता. now here it represent a Snell's law which is very essential to understand when we are going to the convey the information on the basis of light. मीन्स लाइट के आधार पर हम जो भी सिग्नल का ट्रांसमिशन कर रहे हैं थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो हमें रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल क्या है, और उसमें स्नेल्स लॉ क्या है जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फॉलो करता है, वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना हमें बहुत ज़रूरी है. तो आई रिप्रेजेंट हियर अ पर्टिकुलर डायग्राम. ओके, सी नाउ हियर इट रिप्रेजेंट दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट रे. ये एक इंसिडेंट लाइट रे है, ये हमारा नॉर्मल लाइन है, और ये हमारी मटेरियल की बाउंड्री है. मटेरियल की बाउंड्री मतलब दो मीडियम, ये ऊपर वाला एक अलग मीडियम होगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ज़्यादा है n2 से. तो आप यहाँ पे कंसिडर करिए कि इस पर्टिकुलर ऊपर वाले मीडियम का या फिर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और इस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1. दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग होना चाहिए. तो यहाँ से हमने इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया, और जैसे ही मटेरियल दूसरे मटेरियल के बाउंड्री को टच हुआ तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ. क्या हुआ, रिफ्रैक्शन. इसलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपना जो लाइट रे है वो बेंड हुआ और वो दूसरे मीडियम में चला गया, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल हुआ. ओके, द एंगल विच मेक with the normal by this incident ray is represent here phi1, and this ray is making the angle with the normal is represent as a phi2. Okay, now here another ray is mentioned. This ray is called as a reflected ray. See, this ray is called as a reflected ray. The ray which reflected into its same medium is called as a reflection principle. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए ये अपना रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल है, और यही होना चाहिए हमारे
टोटल इंटरनल प्रिंसिपल में, तभी हम ट्रांसमिशन करते हैं ड्यूरिंग द ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन। ओके, तो यहाँ पे φ1 रिप्रेजेंट किया है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ बनाया है। यहाँ पे φ2 रिप्रेजेंट किया है जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है। यहाँ पे θ2 है जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है मटेरियल बाउंड्री के साथ, और यहाँ पे θ1 है जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है किसके साथ, मटेरियल के साथ। यहाँ पे θ1 है जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है मटेरियल बाउंड्री के साथ। सो ऑल दीज इसेंशियल पैरामीटर लाइक φ2, φ1, θ2, θ1, these are the angle which makes with the normal lines or which makes with the angle with the material boundary. So this is related to the Snell's law. The important point, what do you mean by Snell's law is explained in our next slide. See, the important points related to the Snell's law is, at the interface of medium 1 and medium 2, the incident ray may be refracted towards the normal or away from it. मतलब हमने जो प्रीवियसली डायग्राम देखी है उसमें दो मीडियम थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहने वाला है। तो जब भी इंसिडेंट रे उस पर्टिकुलर मीडियम सेकंड मीडियम को स्ट्राइक करेगा तब नॉर्मल से हमारा रिफ्रैक्टेड रे दूर जाएंगे, यही फर्स्ट पॉइंट में बोलना है। सेकंड पॉइंट, रिफ्रैक्शन कैन बी ग्रेटर और स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द टू मटेरियल। जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा रहेगा, बट वो डिपेंड करेगा दोनों मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। The relationship at the interface is known as Snell's law and is given by, जो भी रिलेशनशिप रहेंगी अभी दो मटेरियल के बीच में जो इंटरफेस हो रहा वही होता है स्नेल्स लॉ, और वो स्नेल्स लॉ हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। हियर n1 sin θ1 equal to n2 sin θ2. This is our Snell's law and this is very important. Sometimes we represent or equivalently we represent n1 cos θ1 and n2 cos θ2, but we clearly understand only this n1 sin θ1 equal to n2 sin θ2. This is our Snell's law and it is very important whenever you go for the numericals. Now we are going to discuss some basic definition and very important whenever we go for the numericals based on the measuring parameter of optical fiber. So very first important definition is related to the critical angle, and the critical angle is, see here in diagramic form I represent here phi c. This phi c means it is a critical angle. Okay, this n1 having a particular medium refractive index and n2 having this medium refractive index. The angle which makes with the normal is called as a critically makes with the angle is called as a critical angle, and which represent is a phi c. So I represent here, it is a definition, it is the smallest possible angle of incidence at which light rays are totally reflected at an interface between substances of different refractive indices. मतलब जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल है इंसिडेंट एंगल, मतलब ये अपना इंसिडेंट रे है और यहाँ से लाइट रे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा। तो नॉर्मल के साथ जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल है इंसिडेंस, जहाँ पे एंगल या फिर रे इंसिडेंट होगा उस पर्टिकुलर एंगल को अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, एंड दिस क्रिटिकल एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय phi c and which having expression sin inverse n2 by n1. Sin inverse n2 by n1. n2 means the refractive index of this medium
and n1 means the refractive index of this medium. Generally, whenever you solve the problem, the n2 and n1 considered as a core and cladding. Okay, so this is related to the critical angle. Second important definition is based on acceptance angle. यानी जैसे ही लाइट रे एंटर होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर दो मीडियम होने वाले हैं, एक कोर और दूसरा क्लैडिंग. तो कोर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो कितने एंगल पे वो लाइट रे, जैसे लाइट रे हम किसी डिफरेंट सोर्स से एंटर करा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर, लाइक वो लाइट सोर्स होगा एलईडी या फिर वो लेज़र भी हो सकता है. तो लाइट सोर्स से लाइट सिग्नल एंटर हो रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर, तो वो कितने एंगल पे उसको एक्सेप्टेंस करेगा, वो एंगल मतलब जनरली हम बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस एंगल. ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशन रिप्रेजेंट की है. तो एक्सेप्टेंस एंगल विच रिप्रेजेंट एज जनरली थीटा ए, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है थीटा ए. थीटा ए ये होता है एक्सेप्टेंस एंगल, और उसकी डेफिनेशन है इट इज़ द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द लाइट रे विद द फाइबर एक्सिस सो दैट लाइट कैन प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यस, आप सभी को पता है कि अगर लाइट ट्रांसमिट करना है, यानी सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो हम ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो लाइट ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करते जाना चाहिए, तभी हमारा सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के साथ मिनिमम लॉसेस के साथ ट्रांसमिट हो सकेगा. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर लाइट सिग्नल हमें पास करना होगा, तो उस केबल ने उस सिग्नल को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो जो भी मैक्सिमम एंगल बनेगा केबल का और लाइट रे का, उस पर्टिकुलर एंगल को अपन बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल. ओके, रिलेशन एन ए एंड एक्सेप्टेंस एंगल. यहाँ पे एन ए मतलब होता है न्यूमेरिकल एपर्चर, उसकी भी एक डेफिनेशन है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. एन ए और एक्सेप्टेंस एंगल का क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करेंगे. तो एन ए इक्वल टू होता है साइन थीटा ए. यहाँ पे आपको थीटा की जगह पे क्या रिप्रेजेंट करना है, थीटा ए. थीटा ए मतलब होता है एक्सेप्टेंस एंगल और एन ए मतलब होता है न्यूमेरिकल एपर्चर. अगर हमें थीटा ए कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स एन ए. ये तो आप जान सकते हो इससे कि हमने वाइस वर्सा किया, थीटा ए इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए. सो दिस इज एक्सेप्टेंस एंगल. ओके, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल एपर्चर. सी हियर दिस स्लाइड gives the definition related to the numerical aperture. Numerical aperture means numerical aperture is the light gathering ability or capacity of an optical fiber. This is very important. यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल की लाइट को कलेक्ट करने की एबिलिटी, लाइट को यानी गैदर्ड करने की एबिलिटी मतलब होता है न्यूमेरिकल एपर्चर. दिस इज़ वेरी सिंपल. मोर द एन ए द मोर एफिशिएंट विल बी फाइबर. यानी एन ए ये जो पैरामीटर है वो किसी केबल का ज़्यादा होता है तो वो फाइबर केबल बहुत इफ़िशिएंट है लाइट सिग्नल को पास करने के लिए, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं. न्यूमेरिकल एपर्चर को हम फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे अपन उसको, इट इज ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट. ओके, एन ए इज गिवन बाय इक्वेशन. अभी हम न्यूमेरिकल एपर्चर जो एन ए है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर. अभी आप पूछोगे कि सर ये n1 और n2 क्या है, तो n1 मतलब होता है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n2 होता है मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
तो Na अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल एपर्चर। नाउ ये जो हमने अभी तक जो पैरामीटर पढ़े एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में, क्रिटिकल एंगल के बारे में, और अभी हम पढ़े न्यूमेरिकल एपर्चर के बारे में। ये तीनों डेफिनेशन एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको एक डेफिनेशन और इसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना होगा, तभी आप केयरफुली एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर और सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे इनटू द ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन क्या है ये आप सभी को तो पता है कि लाइट रे सिग्नल जिस मीडियम से आता है और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है तो अपन उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यही रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर फॉलो होना चाहिए, तभी हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड तक पहुंच सकेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो यहाँ पे हमने एक फिनोमेना रिप्रेजेंट किया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना that occurs at the boundary between two media such that if the incidence angle in the first medium is greater than the critical angle then all the light is reflected back into that medium। मतलब एक मीडियम से लाइट सिग्नल आता है, उस लाइट सिग्नल का इंसिडेंट एंगल अगर बड़ा होता है या फिर ग्रेटर होता है देन द क्रिटिकल एंगल, तभी हमारा लाइट सिग्नल उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है। उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब एक मीडियम से हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसी मीडियम में सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब लाइट रे का इंसिडेंट एंगल मटेरियल बाउंड्री के साथ ज़्यादा रहेगा क्रिटिकल एंगल से, तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी मेंशन की है। सी दिस इज द डायग्राम विच शोज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। सी दिस इज द कोर, ये है अपना कोर मीडियम, ठीक है, एंड दिस इज द क्लैडिंग मटेरियल, ये है अपना ये वाला ऊपर वाला क्लैडिंग, ये भी क्लैडिंग मीडियम है, और ये अंदर से जो है जा रहा है सिग्नल हमारा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ये है लाइट सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, ये है अपना लाइट सिग्नल जो कोर मीडियम के साथ जा रहा है। जैसे ही लाइट सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, ये यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, पहले दिख रहा आप सभी को, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, यहाँ पे दो मटेरियल की बाउंड्री है, यानी ये ऊपर का क्लैडिंग और ये है कोर। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो इंसिडेंस एंगल ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तभी सिग्नल सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्ट, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ सेम मीडियम में, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे करते करते सिग्नल क्या होगा, फ्रॉम ट्रांसमीटर साइड टू रिसीवर साइड तक पहुँच सकेगा। ओके, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटली सिग्नल क्या हुआ, को एक मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So here we summarize our today's session after discussing with important terminology based on the optical fiber cable like numerical aperture, critical angle, then Snell's law, then total internal reflection, then acceptance angle. These parameters are very much important during the transmission or while measuring the parameter of optical fiber cable. So I hope you all are
listen carefully and understand well whatever we taught in our today's lecture. So after completion our today's lecture, you all are able to define the terms related to the optical fiber, explain the given terms related to the fiber. मतलब आप जो terms है न्यूमेरिकल एपर्चर, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, total internal reflection, basic terminology like reflection principle and then refraction, ये सभी आप explain कर सकते हो. And calculate the parameter based on optical fiber cable. कैलकुलेट किस तरह से करना है अभी आप सभी को पता है कि एक्सप्रेशन एन ए के एक्सेप्टेंस एंगल N2 क्या है N1 क्या है ये सभी आपको पता है. तो जो असाइनमेंट के अंदर मैंने प्रॉब्लम दिए हैं वो ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए. उसके अंदर नोट्स के अंदर मैंने कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हैं वो भी आपको चेक करना है और बेस्ड ऑन दैट उसका रेफरेंस लेके आपको जो आपको असाइनमेंट दी गई है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू so much. In next lecture we are going to discuss about the losses which incurred in a optical fiber transmission. Thank you so much.